اس کے کلیکٹر اس کے سر پہ تیل ڈال رہا تھا، یہ سزا دے رہا تھا۔ امام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر ناراض ہوئے، آپ نے انتہائی ناپسند کیا اس کے اس عمل کو۔ یہ ذاتی سوچیں ہوتی تھی، کوئی اسپیسیفک لکھی ہوئی کوئی نپی تولی سزائیں تو ان چھوٹی چیزوں کے لیے نہیں تھیں۔ یہ تو کلیکٹرز ہیں، مختلف عامل ہیں، آفیسرز ہیں، اپنی سمجھ کے مطابق ان کو تھوڑا پریشرائز کر دیتے ہر قسم کے لوگوں کو ٹیکس وصول کرنے کے لیے۔ آپ ناراض ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے فرمایا خبردار ان کو چھوڑ دو، اور ٹیکس وصولی کے لیے نہ ان کے سر پہ تیل ڈالو، نہ دھوپ میں کھڑا کرو، نہ اذیت دو، نہ تکلیف دو، نہ اتنا پریشان کرو، کوئی تکلیف نہ دو، اور جس قدر وہ طاقت نہیں رکھتے اس کی وصولی میں بھی انہیں پریشان نہ کرو، جس قدر طاقت استعداد رکھتے ہیں وصول کر لو، جو نہیں رکھتے چھوڑ دیں۔ پھر آپ نے فرمایا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ لوگوں کو عذاب نہ دیا کرو، یعنی تکلیف نہ دیا کرو، بے شک وہ لوگ جو دوسرے لوگوں کو دنیا میں عذاب یعنی سزا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن سزا دے گا۔ سو آپ کے حکم پر عامل نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب اس پوری واقعہ کو بھی امام ابو یوسف نے کتاب الخراج اور دیگر ائمہ نے اپنی کتب میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے، ہشام بن حکم، یہ حمص آپ کے تابع تھا، اس کے عامل تھے، بڑے تھے، افسر تھے۔ اس حمص کے ایک سرکاری افسر کو عامل کو دیکھا، ایاز بن غنم اس کا نام تھا، کہ وہ ایک قبطی کو، ایک غیر مسلم شہری کو جو قبطی تھا، اس کو ٹیکس وصول کرنے کے لیے دھوپ میں اس نے کھڑا کر رکھا تھا۔ جب آپ نے ہشام بن حکم نے دیکھا کہ اس نے ایک غیر مسلم کو ٹیکس کی وصولی کے لیے جائز جو حکومت کا رائٹ ہے دھوپ میں کھڑا کیا، آپ سخت ناراض ہوئے، اس پر ملامت کی اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو خود اللہ سزا دے گا قیامت کے دن جو دنیا میں لوگوں کو سزا دیتے ہیں اس طرح کی۔ تو دھوپ میں کھڑا کر کے جو سزا دیتا ہے اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تپش میں سزا دے گا۔ سو اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اب یہ حدیث جو ہے یہ خود صحیح مسلم میں امام مسلم نے روایت کی ہے اس واقعہ کو، حدیث نمبر 2613۔ اسے امام ابو داؤد نے بھی السنن میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 3045۔ امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں، امام احمد بن حنبل نے المسند میں، امام ابن حبان نے الصحیح میں، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں، اور امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں۔ ان تمام کتب حدیث میں یہ پوری بات آئی ہے، حکم آیا۔ پھر قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الخراج میں کہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جائے، غیر مسلم شہریوں کے ساتھ، اور سختی ہرگز نہ کی جائے۔ یہاں پر آگے میں ایک کوٹ کرنا چاہتا ہوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک قوم کو جن کے ساتھ معاہدہ ہوا تو امان نامہ لکھا نان مسلم مائنورٹیز کے لیے، وہاں کے غیر مسلم شہریوں کے لیے، اہل حیرہ کے نام۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے امان نامہ میں لکھا، فرمایا کہ میں نے ان کے لیے، غیر مسلم شہریوں کے لیے، یہ حق بھی مقرر کیا ہے کہ جو شخص ان کا بوڑھا ہو جائے اور بڑھاپے کے سبب سے کام کاج اور محنت مزدوری اور جاب کرنے کے قابل نہ رہے، ایک، یا کسی شخص پر کوئی آفت اور تکلیف مصیبت آ جائے بیماری کی شکل میں اور وہ انیبلٹی ہو جائے، کام کرنے کے قابل نہ رہے، یا وہ پہلے زندگی میں مالدار تھا، ٹیکسز ادا کرنے کے قابل تھا، اب کسی سبب سے وہ فقر اور فاقے میں، غربت میں مبتلا ہو گیا، اس کے پاس وسائل نہ رہے، اور اس کی غربت کی شہادت اور تصدیق اس امر سے ہے کہ اس کے اپنے مذہب کے لوگ اس کی مدد کرنے کو، خیرات کرنے کو درست سمجھ رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان ایسے تمام لوگوں کے لیے اسلامک ٹیکسز جو ان کے ذمے واجب الادا تھے معاف کیے جاتے ہیں، وہ وصول نہیں کیے جائیں گے، اور علاوہ ازیں ان کے اور ان کے بیوی بچوں کے اخراجات کے لیے ریاست کے، اسلامی ریاست کے بیت المال سے ان کو ماہانہ خرچ دیا جائے گا، انکم سپورٹ دی جائے گی، سوشل بینیفٹس مقرر کر دیے ہیں۔
خوبی یہی نہیں ہے کہ انداز و ناز ہو، معشوق کا ہے حسن اگر دل نواز ہو، معشوق کا ہے حسن اگر دل نواز ہو۔ ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام ناظرین آداب، ای ٹی وی اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم اور آپ دیکھ رہے ہیں دکن نامہ۔ سب سے پہلے نظر ہیڈ لائنز پر۔ پارلیمنٹ کے مانسون سیشن سے قبل تلنگانہ مسئلے پر ہوگا حتمی فیصلہ، کانگریس لیڈر جناردن دویدی کا بیان۔ علاقہ تلنگانہ میں آج بطور احتجاج تعلیمی ادارے رکھے گئے بند، کانگریس پر ٹال مٹول کا لگایا گیا الزام۔ دلسکھ نگر جڑواں بم دھماکہ معاملہ، فورنسک ماہرین نے پیش کی این آئی اے کو اپنی رپورٹ، انڈین مجاہدین پر ظاہر کیا شبہ۔ اور گرام پنچایتوں کے انتخابات، پرچہ نامزدگیاں داخل کرنے کی مہلت ختم، 23، 27 اور 31 جولائی کو ہوگی پولنگ۔ دکن نامے کی خبروں سے پہلے یہ نظر ڈالتے ہیں ابھی تک کی کچھ دوسری بڑی خبروں پر۔ کانگریس انتخابات میں فوڈ سیکیورٹی اسکیم کا کارڈ کھیلنے کی تیاری کر رہی ہے۔ سونیا گاندھی کانگریس کے اقتدار والی ریاستوں میں اس پر پابندی سے عمل کرانا چاہتی ہیں۔ دہلی میں کانگریس وزراء اعلیٰ کی میٹنگ میں انہیں اس اسکیم پر پابندی سے عمل کرنے کو کہا گیا۔ گزشتہ ہفتے ہی فوڈ سیکیورٹی آرڈیننس پر صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی نے دستخط کیے ہیں۔ رواں سال کے آخر میں 6 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات ہونے ہیں اور اس میں دہلی بھی شامل ہے۔ کانگریس 20 اگست کو سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کے جنم دن کے موقع پر دہلی میں اس اسکیم کو لانچ کرنے جا رہی ہے۔ کانگریس لیڈر دگ وجے سنگھ نے خود کو ہندو قوم پرست بتانے والے نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ دگ وجے سنگھ نے کہا کہ ہمیں قوم پرست ہندوستانی ہونا چاہیے۔ دگ وجے سنگھ نے ٹویٹ کر کے مودی سے کہا ہے کہ وہ ملک کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم نہ کرے۔ یاد رہے کہ نریندر مودی نے ایک خبر رساں ادارے کو دیے انٹرویو میں خود کو ہندو قوم پرست قرار دیا تھا۔ لیجنڈری بالی ووڈ اداکار پران کی آخری رسومات ادا کر دی گئی۔ پران کی آخری رسومات ممبئی کے دادر میں شیواجی پارک کے الیکٹریکل کریمیٹوریم میں ادا کی گئی۔ ممبئی کی فلمی دنیا کی جو بڑی ہستیاں پران کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شیواجی پارک پہنچی، ان میں فلم ساز اور نغمہ نگار گلزار امیتابھ بچن، شتروگھن سنہا، ڈینی، کرن جوہر، رضا مراد، شکتی کپور، ٹینو آنند، انوپم کھیر اور راج ببر وغیرہ شامل ہیں۔ گزشتہ رات پران کا ممبئی کے لیلاوتی اسپتال میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ 93 برس کے تھے۔ اور نظر دکن نامے کی خبروں پر۔ کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر جناردن دویدی نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے قبل تلنگانہ مسئلے کو حل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے قبل ہی اس مسئلے کے حل کے لیے 1-2 اہم اجلاس منعقد ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ این کرن کمار ریڈی اور پردیش کانگریس کے صدر بوتسا ستیہ نارائنا نے آج آندھرا پردیش کانگریس امور کے انچارج دگ وجے سنگھ سے ملاقات کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ ریاست میں نئی کوارڈینیشن کمیٹی اور منشور کمیٹی تشکیل دینے کے بارے میں غور کیا گیا۔ دگ وجے سنگھ نے واضح کیا کہ تلنگانہ پر اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، بلکہ کانگریس ورکنگ کمیٹی کا جلد اجلاس ہوگا اور اس میں فیصلہ لیا جائے گا۔ تلنگانہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کنوینر پروفیسر کودنڈا رام نے تلنگانہ مسئلے کے حل کے ذمہ داری سی ڈبلیو سی کو سونپنے کے فیصلے کی شدید نکتہ چینی کی۔
कोदंडाराम ने इसे कांग्रेस की टालमटोल के रवैये से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान पर दबाव बढ़ाने के लिए तेलंगाना हामी एहतजाज में शिद्दत पैदा करेंगे। कोदंडाराम नलगुंडा में मीडिया से बात कर रहे थे। सीमा आंध्रा इलाके से ताल्लुक रखने वाले रियासत के वजीर पार्था सारथी ने कहा कि उन्हें रियासत की तकसीम पर कोई एतराज़ नहीं है। ताहम पार्था सारथी ने कहा कि रियासत की तकसीम की सूरत में विजयवाड़ा को आंध्रा रियासत की राजधानी बनाना चाहिए। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के नारायणा ने तेलंगाना मसले पर कांग्रेस की टाल मटोल पॉलिसी पर शदीद तनकीद की। नारायणा ने तिरुपति में मीडिया से बात करते हुए कहा कि 15 जुलाई को कम्युनिस्ट पार्टियां तेलंगाना के लिए शदीद एहतजाज करेंगी। सीपीआई सेक्रेटरी ने कहा कि सोनिया गांधी समेत कांग्रेस लीडर तेलंगाना मसले की आड़ में 2014 का इंतखाबात जीतने की कोशिश कर रहे हैं। नारायणा ने तेलंगाना के लिए जद्दोजहद करने वाले टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव पर भी शदीद नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि केसीआर नाकाबिल भरोसा शख्सियत है। పైబడి వామపక్ష పార్టీల్లో ఎవరైతే తెలంగాణ కోరుతారో అలాంటి వారితో కలిసి కార్యాచరణ రూపొందిస్తే తప్ప ఇంకొక మార్గం లేదు. ఎందుకంటే కేసీఆర్ ఏమో ఎటు దూకుతాడో తెలియదు, ఏ పక్క ఉంటాడో తెలియదు, ఫామ్ హౌస్ ఎప్పుడు పడుకుంటాడో తెలియదు, ఎప్పుడు బయటకు వస్తాడో తెలియదు. సోనియా గాంధీ దెయ్యం అంటాడు, మళ్ళీ సోనియా గాంధీ దేవత అంటాడు. ఆయన ఎవరి కాళ్ళు ఇప్పుడు పట్టుకుంటాడో తెలుస్తావదు. అదేంటంటే మాకు అయ్యే పని కాదు కాబట్టి మా సొంత కార్యక్రమం మీదనే మేము ఉండదలుచుకున్నాం. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు చెప్పాల్సిన ఒకటే, రాయలసీమలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు కానీ, కోస్తాలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు కానీ, తెలంగాణ ప్రాంతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు కానీ తేల్చాల్సి అంటే అందరూ కలిసి ఒక మాటగా అనుకొని చెప్పుకోండి. అంతేగాని రాష్ట్రంతో మీరు బంతి ఆట ఆడుకోబాకండి అని మాత్రమే వారిని హెచ్చరిస్తాం. कोर कमेटी की मीटिंग में तेलंगाना मसला हल न होने पर तेलंगाना के तलबा तंजीमों ने आज तालीमी इदारों के बंद की कॉल दी थी। बंद के कॉल पर इलाके भर में तालीमी इदारे बंद रहे। तलबा ने जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे किए। तेलंगाना मसले पर जुमे को दिल्ली में मुनक्किदा कांग्रेस कोर कमेटी की मीटिंग में कोई फैसला न लेने के खिलाफ तेलंगाना हामियों में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। तेलंगाना मसले को कांग्रेस वर्किंग कमेटी को सौंपने पर बतौर एहतजाज तेलंगाना विद्यार्थी संघ, उस्मानिया यूनिवर्सिटी जेएसी ने तालीमी इदारों के बंद की कॉल दी थी। तेलंगाना तलबा तंजीमों ने इलाके के अवाम को फिर एक बार धोखा देने का कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम आयद किया। तेलंगाना स्टूडेंट्स जेएसी के लीडरों और तेलंगाना हामियों ने प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन का घेराव करने की कोशिश की। मुजाहिरीन ने इस मौके पर मरकजी और रियासती कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजियों ने इलाके के अवामी नुमाइंदों से फौरन इस्तीफे का मुतालबा किया। हैदराबाद और सिकंदराबाद समेत नवाही इलाकों में ज्यादातर तालीमी इदारे बंद रखे गए। గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్లో లబ్ధి పొందడం కోసమే తెలంగాణ రాష్ట్రం డ్రామా ఆడిరు. కాంగ్రెస్ నాయకులు ఎవరు కూడా గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్లో వాళ్ళకు మొత్తం పొందగొడితేనే గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్లో వాళ్ళకి డిపాజిట్ రాదు, వాళ్ళ ఊర్లో తిరగనీయకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ డిపాజిట్ కల్పించాలి. वहीं दूसरी जानिब तेलंगाना स्टूडेंट्स जेएसी की कॉल पर निजामाबाद जिले में स्कूलों और कॉलेजों को रजाकाराना तौर पर बंद रखा गया। तलबा जेएसी की जानिब से बाइक रैली निकाली गई। बाद में तेलंगाना चौराहे पर कांग्रेस पार्टी का अलामती पुतला नजरियातिश किया गया। मुजाहिरीन ने जल्द से जल्द पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल पेश करने की मांग की। నిన్న జరిగినటువంటి కాంగ్రెస్ కోర్ కమిటీ కాదు, అది కాంగ్రెస్ చోర్ కమిటీ అని చెప్పేసి మేము అభివర్ణిస్తూ ఇక కాంగ్రెస్ సర్పంచ్ ఎన్నికల్లోకి, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల పేరుతోటి గ్రామాల్లోకి వస్తున్న కాంగ్రెస్ నాయకుల్ని అడ్డుకోవాలని చెప్పేసి తెలంగాణ వాదులని, తెలంగాణ ప్రజల్ని పిలుపునిస్తా ఉన్నాం. జై తెలంగాణ. महबूबनगर जिले में भी तालीमी इदारों के बंद की कॉल का असर देखा गया। तेलंगाना हामी तलबा ने स्कूलों और कॉलेजों को घूम घूम कर बंद कराया। तलबा जेएसी की जानिब से बाइक रैली निकाली गई और कांग्रेस पार्टी का पुतला नजरियातिश किया गया। इस तरह तेलंगाना के दीगर अजला में भी तालीमी इदारों को बंद रखा गया। मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी रैलियां निकाली गयी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। नंदकरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे की बात। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ।
अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। आज मैं आपसे एक जरूरी बात कहने आया हूँ। इन तस्वीरों को देखिए। मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ? मुझे क्लास में हर कोई बेवकूफ कहता है। मैं रन लेने भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ। ये सब सुए तग़ज़िया की अलामतें हो सकती हैं, लेकिन सुए तग़ज़िया से बचा जा सकता है अगर हम 4 बातों का ख्याल रखें। 1. हामिला ख़वातीन को अच्छा खाना मिलना चाहिए, हस्बे मामूल से 1/4 ज्यादा। 2. माँ का पहला दूध बहुत ही अच्छा होता है, सच्चा होता है, इसे हरगिज़ न फेंकें। माँ का पहला दूध बच्चे को जरूर पिलाएं। 3. बच्चे के 6 महीने का होने तक उसे सिर्फ माँ का ही दूध पिलाएं और कुछ भी नहीं, पानी तक नहीं। और 4. जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो 7वें महीने से माँ का दूध और खुराक दोनों की तरफ जरूर तवज्जो करें। तो ये 4 बातें भूलिएगा नहीं। 4 बातों से नाता जोड़ो, सुए तग़ज़िया भारत छोड़ो। Match on. कभी छोटी सी शरारत बन जाए आफत और जिंदगी is good. TT Innerwear, TT is good. ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं दक्कननामा। वज़ीर सानवी तालीम पार्था सारथी ने कहा है कि 21,000 असातिज़ा की आसामियों के लिए रवां साल नवंबर में DSC मुनक़िद किया जाएगा। कृष्णा ज़िले में मीडिया से बात करते हुए पार्था सारथी ने कहा कि अगस्त के आखिर में टेट मुनक़िद किया जाएगा। ग्राम पंचायतों के हो रहे इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगियाँ दाखिल करने का अमल आज ख़त्म हो गया। 17 जुलाई तक नामजदगियाँ वापस ली जा सकती हैं। मजालिस मुकामी इदारों के इंतखाबात के पेश नज़र देहातों में गहमा गहमी देखी जा रही है। सरपंचों और वार्ड मेंबरों के लिए इंतखाबात 3 मरहलों में कराए जा रहे हैं। पहले मरहले के तहत 23 जुलाई, दूसरे मरहले के तहत 27 जुलाई, जबकि तीसरे मरहले के तहत 31 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। देही इलाकों में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। नक्सलियों ने आंध्र प्रदेश में हो रहे ग्राम पंचायतों के इंतखाबात का बाइकआउट करने की लोगों से अपील की है। नक्सलियों की जानिब से खम्मम जिले के भद्राचलम डिवीजन के भोस्करकुंडा बस स्टॉप पर पम्पलेट्स लगाए गए हैं। नक्सलियों की जानिब से जारी पम्पलेट में आदिवासियों पर पुलिस हमले की शदीद मजम्मत की गई है। दिलसुख नगर जुड़वा बम धमाका मामले में फॉरेंसिक शोबे ने अपनी रिपोर्ट कौमी जांच एजेंसी यानी NIA को पेश की है। CCTV फुटेज की बारीकी से जांच करने के बाद फॉरेंसिक टीम इस नतीजे पर पहुंची है कि ममनुआ दहशतगर्द तंजीम इंडियन मुजाहिदीन ही इस धमाके में मुलविस हो सकती है। बताया जा रहा है कि बम धमाकों से कुछ देर कबल ही मुलजिम यासीन भटकल खुद साइकिल पर हादसे के मुकाम को आया था और उसकी साइकिल के पीछे एक थैली भी थी, जबकि एक और मुलजिम तहसीन अख्तर पर भी शुबा जाहिर किया जा रहा है। NIA फॉरेंसिक रिपोर्ट की रोशनी में आगे की जाँच करेगी। आनंद रेजेंसी ग्रुप ऑफ होटल्स के सदनशीर व मैनेजिंग डायरेक्टर जेमिनी TV फिल्म प्रोड्यूसर A रविशंकर प्रसाद की लाश दस्तयाब हुई है। गुज़िश्ता 9 जुलाई के अरस सुबह 3:15 पर वो यानम में एक होटल से चहलकदमी के लिए निकले थे और तभी से लापता बताए जा रहे थे। यानम पुलिस को उनकी लाश दस्तयाब हुई है। पुलिस खुदकुशी का शुबा कर रही है, ताहम रिश्तेदारों का कहना है कि रविशंकर खुदकुशी हरगिज़ नहीं कर सकते। और ख़बर रमज़ान मुबारक से जुड़ी हुई। हैदराबाद समेत आंध्र प्रदेश के तमाम ज़िलों में रमज़ान मुबारक के लिए मस्जिदों को रोशन किया गया है। पुराने शहर हैदराबाद में भी माह सियाम के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। ताहम महंगाई में इजाफे के सबब रोज़ेदारों को दुश्वारी पेश आ रही है। माह रमज़ान के आगाज़ के साथ ही मसाजिद में रौनकें देखी जा रही हैं।
माह सियाम में मुसलमान रोजे रखते हैं और इबादतें, जिक्र व अस्कार, तस्बीह व तहलील और तिलावत कुरान मजीद में मसरूफ हो जाते हैं। रमजान मुबारक के दौरान अवाम की सहूलत के लिए आंध्र प्रदेश हुकूमत ने खुसूसी इंतजामात किए हैं। फल और सब्जियों की कीमत में इजाफा होने के सबब रोजेदारों को दुश्वारी हो रही है। గిరాకులు కూడా వచ్చిర్రు, అమ్మినాము, మంచిగానే ఉండే, కానీ ఇప్పుడు మాత్రం మస్తు బిరమైపోయినాయి. ఎవరు కొనాలైనా ముంగడికి వస్తలేరు. ధర ఇప్పుడు మేము కొంచెం రంజాన్ నెల వచ్చింది, కొంచెము సంపాదించుకోవాలని అనుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు గిరాకీ ఇట్లా అమ్ముతున్నావు, పోయినసారి ఇట్లా ఇచ్చినావు, ఇప్పుడు రేటు పడతలేదు, మాకు బాలమ్మ ఇట్లా చేస్తున్నావు అని అంటారు. कारोबार करते चार मीनार पे हर साल रमज़ान के 10 दिन पहले से हम लोग तैयारी कर लेते और रमज़ान का बेसब्री से इंतज़ार करते कि रमज़ान में अच्छी खासी कमाई हो जाती, इसीलिए पूरा फ्रूट एक 8 दिन पहले से स्टॉक करते हम लोग और अच्छी तरीके से सेल होता रमज़ान में। हैदराबाद में रमजान का नाम सुनते ही सबको हलीम की याद आती है। कहा जाता है कि असली घी से तैयार करदा हलीम खाने से रोजेदारों को कुव्वत मिलती है। हैदराबाद के बेशतर मकामात पर हलीम फरोख्त की जा रही है। मुसलमानों के अलावा बिरादरान वतन भी हलीम को पसंद कर रहे हैं। हैदराबाद की हलीम आलमी सतह पर मकबूलियत रखती है और हलीम जब खाते हैं रमज़ान में ख़ास तौर पे तो रोज़ा रहने के बाद काफ़ी एनर्जी आती है और क्योंकि इसके अंदर काफ़ी प्रोटीन डाइट है ये और इसके अंदर कई इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जिससे ज़्यादा आपको एनर्जी मिलती है, जैसा कि इसके अंदर ज़ाफ़रान है, मटन है। 7 में हलीम बना, उन्हें 4-5 साल हलीम खिलाया है। तो मिस्टर मीर उस्मान अली पाशा जो उनको हलीम खिलाने के बाद उन्होंने बोला कहीं भी हलीम चालू नहीं कर दे और द फर्स्ट टाइम इन इंडिया हैदराबाद 1952 में हलीम स्टार्ट करे। माह रमजान में मलबूसात के शोरूम्स में भी रौनकें नजर आ रही हैं। मलबूसात के शोरूम्स में नए स्टॉक पहुंच चुके हैं। बाजार में नए नए डिजाइन के मलबूसात दस्तयाब हैं। ईटीवी न्यूज़ हैदराबाद। दकरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। मुझे बनाने का शौक था बचपन से और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। फिर से भाई बहन सबसे आगे, ये राज क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। जीने लगा हूँ, पता नहीं क्यों सोना में हर दिन कुछ नया दिखता है। पहले से ज्यादा तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाई? तुम्हारे चेहरे की खुशी के लिए। I love you. ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं दकरनामा। कर्नाटक के वज़ीर अक़लियती बहबूद कमरुल इस्लाम ने हाल ही में पेश करदा रियासत के बजट को तारीख़ी करार दिया। इन्होंने कहा कि इस बजट में अक़लियतों के लिए रिकॉर्ड 1043 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो हुकूमत आंध्र प्रदेश के बजट में अक़लियतों के लिए मुख्तस करदा रकम से भी ज़ायद हैं। कमरुल इस्लाम का मानना है कि आंध्र प्रदेश के बजट में तालीम और रोज़गार के साथ साथ डेवलपमेंट को भी शामिल करते हुए इसके लिए रकम मुख्तस की गई है। कमरुल इस्लाम हैदराबाद में एक निजी तकरीब में शिरकत के लिए आए हुए थे। 1000 करोड़ का हमारी माइनॉरिटी का भी आज़ादी के बाद की तारीख में, और मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ आंध्र प्रदेश ने 1000 करोड़ दिए, लेकिन हमारा बजट 1043 करोड़ का है।
शायद आंध्रा सेकेंड हो और उसके बाद बिहार आए। इसमें 367 करोड़ रुपए जो अक़लियतों को लोन था, कैपिटल एंड इंटरेस्ट, टोटल वेव कर दिया गया। नेल्लूर रेलवे स्टेशन पर भारी मिकदार में सोना जब्त किया गया है। रेलवे पुलिस के मुताबिक कुछ अफराद कोलकाता से बगैर रसीद के 35 किलो सोना हावड़ा चेन्नई एक्सप्रेस के जरिए नेल्लूर मुंतकिल कर रहे थे। रेलवे पुलिस ने इतला मिलने पर इसे जब्त कर लिया। पुलिस ने सोना मुंतकिल करने वाले कैलाश कुमार और कुंदन व्यास को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक जब्त शुदा सोने की लागत 9 करोड़ रुपए बताई जाती है। హౌరా ఎక్స్ప్రెస్లో హౌరా చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్లో A1 కోచ్లో నుంచి ఇద్దరు కుర్రవాళ్ళు దిగారు. అనుమానాస్పద పరిస్థితుల్లో వారిని తనిఖీ చేయగా వారిద్దరి వద్ద ఉన్నటువంటి 2 సూట్ కేసుల్లో కలకత్తాలో తయారు చేయబడినటువంటి సుమారు 35 కిలోల బంగారు ఆభరణాలు ఆ సూట్ కేసుల్లో ఉన్నాయి. వారి వద్ద ఎలాంటి అధికృత రసీదులు లేవు. వ్యక్తులపై లేదా వారికి చెందిన సంస్థపై చర్య తీసుకునేలాగున వాటిని ఆ యొక్క శాఖలకి మేము ఇన్ఫార్మ్ చేయడం జరుగుతుంది. अमेरिका में मुकीम हैदराबादी माहिर तग़ज़िया प्रोफेसर मोइन अंसारी गुज़िश्ता 17 सालों से हिंदुस्तान और दूसरे एशियाई और अरब ममालिक में किरोप्रैक्टिस के ज़रिए तरीक़े इलाज के फ्री मेडिकल कैंप मुनक़िद करवाने के लिए जाने जाते हैं। पाल्मर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स के साथ हर साल मुनक़िद होने वाले इस प्रोग्राम के ज़रिए अब तक तकरीबन 50,000 मरीज़ों का इलाज किया गया है। प्रोफेसर मोइन अंसारी हैदराबाद में पैदा हुए और अपनी इब्तिदाई तालीम हैदराबाद में ही हासिल करने के बाद आला तालीम के लिए अमेरिका मुंतकिल हुए। अमेरिका में न्यूट्रिशन यानी तग़ज़िया में पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर पीएचडी करने के बाद प्रोफेसर अंसारी अमेरिका के शहर डेवनपोर्ट में पाल्मेर यूनिवर्सिटी से बहैसियत उस्ताद वाबस्ता हो गए। पाल्मेर यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में कैरोप्रोटेक्ट तरीक़े इलाज के कोर्स के लिए शोहरत रखती है। इस मुनफरिद तरीक़े इलाज के जरिए रीढ़ की हड्डी और इससे मुताल्लिक़ा मसाइल का इलाज किया जाता है। यूनिवर्सिटी के खुसूसी प्रोग्राम के तहत प्रोफेसर अंसारी ने मराकश और हिंदुस्तान में मेडिकल कैंप्स की जिम्मेदारी उठाई और गुज़िश्ता 17 साल से वो ये जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। हैदराबाद में हम लोग 1996 से आ रहे हैं। साल में एक वक्त आना शुरू किए, रिस्पांस बड़ा अच्छा मिला, तो फिर साल में 2 वक्त आना शुरू हुए तो रिस्पांस और अच्छा मिला, तो फिर साल में 3 वक्त आना शुरू करे। उसके बाद जो है ना सिर्फ हम लोग हैदराबाद में ये कारोप्रैक्टिक फैलाएं, बल्कि हम लोग देहरादून में भी किए, दिल्ली में किए, पूना में किए और अब केरला में भी करने वाले हैं। कैरोप्रोटेक्ट तरीक़े इलाज रीढ़ की हड्डी और जोड़ों के दर्द के लिए इंतहाई मौसर लेकिन महंगा इलाज समझा जाता है। प्रोफेसर मोइन अंसारी अपनी डॉक्टरों की टीम के साथ दौरा हिंदुस्तान का मकसद ज़रूरतमंद, ख़ासतौर पर गरीबों को इस तरीक़े इलाज का फ़ायदा पहुँचाना है। हम लोग करीब 50,000 लोगों को किए हैं लास्ट 17 साल में मुख्तलिफ जगहों पे, और फिर फ्री ट्रीटमेंट जो यहाँ पे देते हैं वो अमेरिका में $150 लगते हैं उसको, यहाँ पे आके वो लोग फ्री ट्रीटमेंट देते हैं। तो उसके और गरीब से गरीब, मैं चाहता हूँ गरीब से गरीब लोग जो है उसका इस्तेफादा करें। प्रोफेसर मोइन अंसारी चाहते हैं कि वो यूनिवर्सिटी की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप्स के इनेकाद के लिए बार बार हिंदुस्तान आए और अपने इलाज के जरिए गरीबों की दुआएं हासिल करें। ईटीवी न्यूज़ हैदराबाद। मजलिस बचाओ तहरीक के सदर आदम मलिक एडवोकेट का इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर मक्का मस्जिद में अदा